Good morning, students. Our today's topic is looping constructs. Yesterday we have completed conditional statements. Conditional statements, as you know, that statements are executed based on some condition. If condition is true, then some statements are executed, and if condition is false, then some other statements are executed. Now today we are going to start loops. Loops means looping constructor. Loops we can say, or we can say them repetitions, or we can also call them iterations, iterative statements. So loop means when the situation is such that we want to repeat some statements again and again. We want to repeat statements again and again based on some condition. We can say that till the some condition is true, then I want to repeat these 5 statements till that condition is true. As soon as that condition is become false, then I will come out of the loop. I will stop repeating those statements. So in such situations where I want to do a particular task repeatedly until some condition is there, then I use looping constructs. So the first looping, we have 2 looping constructs, for loop and while loop. 2 loop है हमारे पास पाइथन के अंदर, for loop and while loop. दोनों ही स्टेटमेंट्स for loop and while loop को हम यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए. तो सबसे पहले देख लेते हैं for loop का सिंटैक्स, हाउ इट वर्क्स. तो for loop के अंदर क्या होता है, इस तरह से ये वर्क करेगा. for यहाँ एक कंट्रोल वेरिएबल होता है. दिस इज द जनरल सिंटैक्स दैट इन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और या आइटम्स इन रेंज, मल्टीपल आइटम्स हो सकती है. तो जब तक ये कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है, देन टिल देन दिस लूप विल गेट रिपीटेडली. ठीक है, स्टेटमेंट्स इन द बॉडी लूप. तो आई कैन एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. Here is the range function. As you know, range में there are 3 arguments होते हैं. range के अंदर start, stop and step. Like range 10. Range 10 means 0, 1 to 9. Last जो वो होता है argument, इसमें last value include नहीं होती है. Range 1 to 11 का मतलब है value will go from 1 to 10. 0, 30 and 5 is the step. Range function. 5 is the step. Third argument is step. So it will go 0. Then 5, then 10, then 15, then 20 and 25. After 25, 5 के स्टेप से बढ़ रहा है, it will become 30 and 30 include नहीं है. So 30 वैल्यू रेंज में नहीं आएगी. 0, -9, -1. In case of minus, it is 0, -1, -2, -3 because step is -1. So it will goes on up to -8 and -9 is not included. So this way range function works. Now how for loop works, let us see. It will work like for I in range 10. So here are a range of values. In after in के बाद, in word के बाद यहाँ पे range of values है. I एक वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है. जब तक I की वैल्यू इस रेंज में रहेगी, then ये for loop के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, whatever statement written in the body of for loop will goes on repeating and repeating. ठीक है, फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो तब तक रिपीट होते जाएंगे जब तक आई की वैल्यू इस रेंज में रहेगी. अब यहाँ पे ये एग्जांपल है फॉर आई इन रेंज 10. रेंज 10 का मीनिंग है वैल्यूज आर फ्रॉम 0 to 9. तो आई की वैल्यू, फर्स्ट आई की वैल्यू 0 आएगी, देन फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9 अप टू 9. ठीक है, जैसे ही 10 होगी आई की वैल्यू, इट विल कम आउट. तो I in range 10, कंट्रोल वेरिएबल I है, I will कंट्रोल की कब तक लूप चलेगा हमारा यहाँ पे. तो लूप विल रन फॉर 9 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, 0 to 9. नाउ आई प्रिंट. अब इसकी जो बॉडी में क्या रिपीट होने वाला है, ये स्टेटमेंट रिपीट होने वाला है बिकॉज इट इज इनसाइड द फॉर लूप. यहाँ स्पेस देखो, ये इंडेंटेशन बोलते हैं इसको. दिस इज द इंडेंटेशन. तो ये जो इंडेंटेशन है, एनोटेशन में लिख लेता हूं मैं, हाइलाइटर. ये जो इंडेंटेशन है ये बनाता है इसको कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है हमारा, इट इज इनसाइड द फॉर लूप.
सो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा 9 टाइम्स। और फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0, देन फिर 2 3 इस तरह से 9 तक जाएगी। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा 0 into 10 0, देन 1 into 10 10, 2 into 10 20, 3 into 10 30, 4 into 10 40, 5 into 10 50, 6 into 10 60। तो दिस वे इट विल गोज अप टू 90। तो फोर लूप इस तरह से चलता है हमारा। फोर लूप का मीनिंग है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि आई की वैल्यू इस रेंज में होना चाहिए, यानी कि 0 से लेके 9 तक होना चाहिए। फॉर आई इन रेंज 10 0 to 9। तो गोज ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, गोज ऑन रिपीटिंग, व्हाट रिपीटिंग, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट्स को बार बार आप चलाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप का। नम इक्वल टू 3 लिया हमने एक नंबर वेरिएबल में, देन फॉर आई इन रेंज 1 to 11 दो आर्गुमेंट्स है, 1 से स्टार्ट करना है एंड अप टू 10 तक जाना है। जो लास्ट आर्गुमेंट वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, उससे एक कम होता है, तो इट विल गोज ऑन 1 to 10। तो आई की वैल्यू क्या चलेगी हमारी यहाँ पे 1 से लेके 10 तक। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, नम 11 कॉमा एक्स। एक्स जो है नम क्या होगा फर्स्ट टाइम 1, नम की वैल्यू सॉरी नम इज 3 एंड एक्स एज इट इज, क्योंकि सिंगल कोट्स में है, इट विल गेट प्रिंटेड एज इट इज। आई की वैल्यू जो होगी फर्स्ट टाइम 1 एंड देन इक्वल टू प्रिंट होगा, देन नम इनटू आई, यानी कि 3 into 1, तो 3 प्रिंट होगा। फिर देन 3 into 2 6, फिर 3 into 3, आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15। तो दिस वे इट विल गोज ऑन रिपीटिंग, I will goes on repeating from 1 to 10 and this statement जो print statement है ये हमारा 1 से 10 यानी कि 10 टाइम्स रिपीट होगा इस केस में। अब देखते हैं आउटपुट कैसे आएगा। देखिए 3, देन फिर x प्रिंट हो गया बीच में, ये देखिए यहाँ से x प्रिंट हो गया, देन i की वैल्यू पहली बार के लिए 1 और फिर इक्वल टू, तो हमारा आ गया 3x, x डिनोट यहाँ पे मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 into 1 इक्वल टू 3, 3 into 2 equal to 6, 3 into 3 equal to 9। तो दिस ये जो स्टेटमेंट है बार बार रिपीट हो रहा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट कितने बार, 10 बार, लास्ट में 3 into 10। तो दिस वे फॉर लूप वर्क्स। नाउ let us see the while loop. While loop is another loop. While loop is another loop that we have, that is also used for repeating. अब इस while loop में क्या होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द नॉर्मल सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ एक टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, इसको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ व्हाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद व्हाइल फिर एक टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन इफ दिस टेस्ट एक्सप्रेशन मींस whose value is either true or false। अब इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और जब तक ये ट्रू रहेगा टिल देन the body of the loop will goes on repeating। इसी को बार बार हम एग्जीक्यूट करेंगे जो भी बॉडी में लिखा होगा। जैसे अगर ये फॉल्स होता है देन else क्लोज विल एग्जीक्यूट। else ऑप्शनल होता है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसको ऑप्शनल है क्योंकि स्किप भी कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे इसको। ये सिर्फ जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी चलेगा। तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। num1 equal to int input enter first number। Here we are taking an input from the user, a number, and we are storing it in num1। num2 equal to int input enter first number। First means okay, यहाँ पे it should be second, enter second number। Then second number we are taking second number and putting in num2। So दो नंबर हमने लिए यूजर से और उनको num1 और num2 में स्टोर कर दिया। एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 0। प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मींस एक थर्ड वेरिएबल है प्रोडक्ट जो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो आई इक्वल टू num1, आई में पहली वैल्यू डाल दी जो नंबर 1 की थी। देन चेक, अब हमने चेक किया व्हाइल num1 ग्रेटर देन 0 की, जो num1 जो पहला नंबर जो यूजर ने इनपुट किया है जब तक वो ग्रेटर रहेगा 0 से तब तक हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई माइनस 1, आई को एक एक कम करते जाएंगे, हर बार एक आई कम हो जाएगा अगर वो बड़ा है तो। जैसे 5 है, अगर आई की वैल्यू यूजर ने फर्स्ट वैल्यू 5 डाल दिया, 5 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गया, तो 5 का क्या हो गया 4, 5 बिकम्स 4, देन 4, फिर देन प्रोडक्ट को क्या किया हमने, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस num2।
सपोज नम 2 हमारा 10 है, पहला नंबर 5 है, दूसरा 10 है, तो प्रोडक्ट क्या था इनिशियली 0, तो 0 + 10 10, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 + 10 10। या इसमें देखिए यहाँ पे जो यूजर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है ये इसमें 6 लिया है, फर्स्ट नंबर इज 6, सेकंड इज 88, तो फर्स्ट नंबर इज 6, 6 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। नाउ 6 बिकम 5 नेक्स्ट स्टेटमेंट में। अब प्रोडक्ट को क्या किया हमने, प्रोडक्ट प्लस नम 2, प्रोडक्ट की 0 0 + 88 88 हो गया फर्स्ट टाइम। देन यही बॉडी ऑफ लूप में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है व्हाइल के। अब दीज गोज ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, कब कितने बार रिपीट होगा, आई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 जब तक 0 से बड़ा रहेगा, और हर बार हम आई में से क्या कर रहे हैं, एक कम कर दे रहे हैं, तो 5 देन 4 फिर देन 3 देन 2 देन 1, यानी कि 5 बार ये लूप रिपीट होने वाला है। जैसे ये 0 होगा तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमें 5 बार क्या करना है, रिपीट करना है इस स्टेटमेंट को। 5 बार क्या करना है, प्रोडक्ट में num2 को ऐड करना है। तो num2 हमारा कितना है 88, 88 था, तो 88 + 88 + 88, 5 बार 88 जो हमारा ऐड हो जाएगा। तो 88 5 बार ऐड, यहाँ पे अगर हमने 6 लिया तो 6 टाइम्स 88 ऐड होने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 528। तो ये इसने दिखाया कि प्रोडक्ट ऑफ num1 एंड num2 इज प्रोडक्ट। उतने बार उसको ऐड कर दो, जितना उस नंबर को उतने टाइम्स ही ऐड कर दो जितने से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें num1 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 6 से हमें मल्टीप्लाई करना था 88 को। तो हमें इसको कैसे निकालना है कि हमें 88 को 6 टाइम ऐड कर देना है, 88 + 88 + 88। तो हमने एक लूप में रख दिया कि भाई ये 88 को जो ऐड करने वाला काम है प्रोडक्ट में, ये हमें जो है बार बार करना है, तो हमने इसको लूप में रख दिया, भाई लूप में। वो लूप कब तक चलेगा, 5 बार चलेगा, क्यों सॉरी 6 टाइम चलेगा, क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 बार चलेगा। तो दिस वे हमने मल्टीप्लीकेशन हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की किसी अदर नंबर से। एक छोटा सा प्रोग्राम था भाई लूप को समझाने के लिए। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर के लिए भी हम लोग व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल आपको मालूम है, जैसे 5 का फैक्टोरियल मीन्स है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने जो नंबर होता है उतने टाइम्स वो रिपीट होता है। जैसे फैक्ट, इसके लिए नंबर ले लिया जिसका फैक्टोरियल निकालना है यूजर से, हमने नम में इनपुट करा लिया फैक्ट इक्वल टू 1। इनिशियली जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 1 ले ली है, और आई की भी वैल्यू 1 लिया है हमने। आई हमारा कंट्रोल वेरिएबल है। व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नम, तो आई को हम बढ़ा रहे हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5। सपोज अगर यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया 8 का, 8 को ले लेते हैं हम लोग, 8 का ही ले लेते हैं। सपोज आई की वैल्यू नम जो है यूजर ने जो एंटर किया वो 8 है। अब आई की वैल्यू जब तक 8 से कम रहेगी तब तक ये रिपीट होगा। रिपीट होना क्या चाहिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, दिस इज द फैक्टोरियल। सो हमने रिपीट क्या किया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो पहली बार आई की वैल्यू 1, तो फैक्ट क्या है 1, 1 × 1 1 फर्स्ट टाइम। फिर हमने आई को क्या किया, हर बार इंक्रीज कर दिया, आई बिकम्स 2, आई इक्वल टू आई + 1, तो आई बिकम्स 2। नाउ दिस टाइम वी विल मल्टीप्लाई फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट कितना हो गया था पहले 1, 1 × 2 दिस टाइम, तो 2 हो गया, 2 × 1। देन आई बिकम 3, देन 2 × 3 3 6 हो गया, देन 6 × 4, देन 24, then 24 × 5। तो दिस वे इट विल गोज ऑन रिपीटिंग अंटिल जब तक कि उसकी वैल्यू जो आई की वैल्यू है, सपोज 8 का निकालने अगर, जब तक वो 8 की हो जाती है, 8 लेस देन और इक्वल टू 8, तो लास्ट टाइम 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन फिर जैसे ये 9 होगा, आई इक्वल टू आई + 1, आई बिकम्स 9। 9 पे क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, आई लेस देन इक्वल टू नम, एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप और प्रिंट करेगा रिजल्ट, द फैक्टोरियल ऑफ नम इक्वल टू फैक्ट। यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो दिस वे लूप वर्क्स। तो dear students, you have to study all these programs, you have to run all these programs in Python। Python की आइडियली में आपको ये सारी सभी प्रोग्राम्स आपको एक्सिक्यूट करके देखना है, तो उससे आपको बेटर इनको समझने में मदद मिलेगी प्रोग्राम्स को, इट विल बी बेटर। नाउ नेक्स्ट, बिकॉज ये रिवीजन 2 चल रहा है, इसमें थोड़ा सा पूरी क्लास 11th के हमें सिलेबस को रिवाइज करना है, तो थोड़ा सा ये ट्रिक जा रहा है। आप ये समझ सकते हो कि इसको यू हैव टू डू इट ऑन योर कंप्यूटर्स, यू हैव टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग फर्दर टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें
स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स ये जो एक तरह की डाटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक जैसे आपका नाम है नमन है, नमन, नमन कंटेन्स NAMAN, NAMAN, 5 कैरेक्टर्स है नमन के अंदर, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो इसको बोल देंगे हम स्ट्रिंग है। जैसे इंटीजर होता है 5, 10 इंटीजर है, फिर 5.2 फ्लोट है हमारा। इसी तरह से हमारे पास कैरेक्टर है A, B कहेंगे। अगर सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर बोलेंगे, बट जहां ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होगा देन वी से दैट इट इज ए स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, दिस इज ए स्ट्रिंग। नाउ अब दो वर्ड्स से मिलके बनी है स्ट्रिंग, बीच में एक स्पेस है, ये भी इसका पार्ट समझा जाएगा। हेलो पाइथन जब हमने बोला है, देन कंप्लीट अगर स्ट्रिंग की बात करें तो द स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर, सो इट इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। नाउ इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? इसकी इंडेक्सिंग होती है फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 to 11। अगर बैक साइड से रिवर्स स्ट्रिंग जो इंडेक्सिंग होती है इसकी -1 से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3। तो ये इंडेक्सिंग हम बता चुके हैं। इसको एक्सेस करने में किसी भी लेटर को इसकी हेल्प करती है स्ट्रिंग के, तो ये हम पहले से ही जानते हैं। इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड रिवर्स इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम -1। यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है। स्ट्रिंग पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, किसी का नाम है क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन या प्लस भी बोलते हैं उसको। जब भी प्लस ऑपरेटर हम यूज करेंगे दो स्ट्रिंग्स के बीच में, तो ये क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा। दोनों स्ट्रिंग्स को ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। जैसे हेलो एंड पाइथन, str1 इज हेलो, str2 इज पाइथन, दोनों को ऐड करेंगे तो str1 प्लस str2, यहाँ पे कनकैटिनेट किया हमने, प्रिंट यहाँ पे देखिए, देन तो ये रिजल्ट क्या देगा, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, क्योंकि बिकॉज दोनों को ज्वाइन कर दिया उसने। इसी तरह से सेकंड ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे रिपीटेशन, स्टार। स्टार अगर दो स्ट्रिंग के बीच में स्टार लगा दिया, concatenates multiple copies of the same strings। तो स्टार ये रिपीटेशन हम लोग जनरली न्यूमेरिक के साथ लगाते हैं। जैसे str1 स्टार 3, तो इट विल रिपीट str1 3 टाइम्स। जैसे अजय स्टार 3, तो इट विल रिपीट अजय अजय अजय। नमन के साथ लगाया, नमन स्टार 3, नमन नमन नमन। यहाँ पे हमने यूज किया str1 स्टार 3, तो str1 है यहाँ पे हेलो, तो इट विल रिपीट 3 टाइम्स, हेलो हेलो हेलो। दिस इज स्टार ऑपरेटर। देन in and not in, there are two functions, range functions हैं जो string के साथ यूज होते हैं। एक in का मतलब है if there is any letter in this, if this letter is in this string। जैसे नमन के अंदर if n is in नमन, तो in नमन का मतलब n है उसमें, तो अगर in अगर है एग्जिस्ट करता है वो लेटर, then it will true होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो false होगा, n in। फिर स्लाइसिंग करने का है n into m, ये हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे दोनों ऑपरेशंस को। देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंट किया हमने h in str1, क्या देखिए h in str1। अब str1 क्या, हेलो, तो क्या स्मॉल h है इसमें, नहीं है, तो इट विल तो फॉल्स। कैपिटल h in str1 है, यस इट इज ट्रू। देन कैपिटल H नॉट इन str1, नहीं, ये तो नॉट इन तो फॉल्स है, ये तो है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉल्स। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिखा है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइस का मतलब होता है पार्ट करना, पार्ट। इट इज सबसेट ऑफ वैल्यू, सबसेट किसी स्ट्रिंग के सबसेट करना, स्लाइस चंक ऑफ कैरेक्टर्स उसमें से निकालना। तो स्ट्रिंग में 3 होते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे एंड करना है, और स्टेप कितने कितने के गैप से निकालना है। इसको भी एग्जांपल की हेल्प से हम इसकी स्लाइसिंग को समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। str1 इक्वल टू हेलो पाइथन, now str1 is hello python, then we use str1 and colon, that means ना ही तो हमने start वाला आर्गुमेंट दिया, ना ही end वाला दिया, ना ही step, तो that means start से लेके end तक complete string। तो ये क्या करेगा, complete string हमें दिखाएगा hello python। now दूसरा एग्जांपल str1 2 to 6, 2 to 6 का मीनिंग है यहाँ पे 0 1 2, 2 पे यहाँ पे l है, l, और 6 लास्ट वाला जो आर्गुमेंट होता है इंक्लूड नहीं होता है, तो ये 2 से लेके 5 तक जाएगा, 2 3 4 एंड 5 स्पेस है, तो L L O एंड स्पेस ये प्रिंट करेगा। 6 इंक्लूड नहीं होता है। जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है यहाँ पे, जो ये देखिए सिंटैक्स को देखिए, स्टार्ट एंड एंड स्टेप। स्टेप जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो एक एक के गैप से ले जा रहे हैं हम लोग। एंड वाले आर्गुमेंट्स को हम लोग लेते नहीं है।
एंड द स्लाइसिंग स्टॉप्स एट इंडेक्स एंड -1, यानी कि एंड से एक पहले ही वो स्टॉप हो जाती है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। str1 3 कोलन देन 3 के बाद हमारा जो एंड आर्गुमेंट है वो नहीं दिया, इसका मतलब अप टू एंड लेना है हमें, 3 से स्टार्ट करना है। 3 का मतलब 0 1 2 3, 3 मतलब फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ है 0 h 1 2 3, तो ये फोर्थ एलिमेंट है हमारा एल ओ पाइथन, तो इसका रिजल्ट आएगा एल ओ पाइथन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें स्टार्ट और एंड नहीं दिया बल्कि स्टेप दिया हुआ है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक लेना है लेकिन दो दो के स्टेप से। तो पहला वर्ड होगा एच, उसके बाद फिर 2 के बाद एल, फिर एल के में 2 जोड़ेंगे तो ओ, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो पी, फिर पी के बाद टी, एक एक छोड़ के लेना है क्योंकि हर सेकंड एलिमेंट लेना है। टी के बाद फिर ओ, तो ये आ जाएगा एच एल ओ पी टी। -5 -2, -5 से स्टार्ट करना है तो पीछे से इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5, -5 पे क्या है हमारा y, -2 पे क्या है o, तो y से लेके o तक के लिए, लेकिन लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसलिए o नहीं आएगा, तो th बाई th। 5 से लेके 2 तक लेना है और -1 का स्टेप लेना है, तो 5 है हमारा 0 1 2 3 4 5, 5 का पे है हमारा स्पेस, तो स्पेस से शुरू करना है और एक एक घटाना है हर बार और -2 तक जाना है, तो यानी कि स्पेस फिर ओ फिर एल और 2 तक जाना है हमें, 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो यही तक जाएगा एल तक, स्पेस ओ एल। थ्री तक जाएंगे, 5 4 एंड 3, 3 लेंगे, 5 4 एंड 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 हमारा स्पेस, 4 हमारा ओ एंड थर्ड हमारा एल। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, -2 से -5 -1, तो -2 कहाँ है यहाँ पे, -2 है हमारा ओ, ठीक है, -5 कहाँ है एच, -3 फिर टी -4 और -5 हो गया हमारा, लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओ टी एच आ जाएगा खाली। देन -2 से स्टार्ट करेंगे -5 तक, -2 पे -2 है ओ, फिर उसके बाद गैप देंगे एक का क्योंकि -2 यहाँ पे स्टेप है तो टी आएगा सीधा। तो इसकी हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कैसे हम लोग स्लाइसिंग या उसके पार्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग। These are string slicing methods. Okay, so today's this is all about this class, so I will end the class here.